آج کی دنیا میں اردو یوٹیوب ایک بھرے ہوئے شور مچاتے بازار کی طرح ہے۔ یہ ایک سرخ سمندر ریڈ اوشن ہے جہاں ہر کوئی ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ سینکڑوں گیمنگ چینلز ایک ہی گیم کھیل رہے ہیں، ہزاروں ویلاگرز ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی طرح کا کھانا کھا رہے ہیں، درجنوں نیوز چینلز ایک ہی خبر کو چیخ چیخ کر سنا رہے ہیں۔ اس بھیڑ میں ایک نیا تخلیق کار کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ عام جواب یہ ہے، بہت محنت کرو، معیار بہتر بناؤ، روز ویڈیو ڈالو۔ لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جس میں آپ کی کامیابی کا انحصار محنت سے زیادہ حکمت عملی پر ہے۔ کامیابی کا راز بہتر مچھلی بننے میں نہیں، بلکہ ایک ایسے نیلے سمندر بلو اوشن میں غوطہ لگانے میں ہے جہاں مچھلیاں کم ہوں اور خوراک زیادہ ہو۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ اگر آپ جلدی اور پائیدار کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو وہ کرنا ہوگا جو دوسرے نہیں کر رہے۔ آپ کو ان خالی میدانوں کو تلاش کرنا ہوگا جنہیں ہر کوئی نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو ان 15 منفرد، غیر معمولی اور انتہائی منافع بخش آئیڈیاز نیچز کا خزانہ ہے جن کی اردو زبان میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ وہ آئیڈیاز ہیں جو آپ کو ایک عام یوٹیوبر سے ایک ماہر اتھارٹی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں منفرد ویڈیوز کے وہ 15 نایاب آئیڈیاز۔ نمبر 1، مقامی کیس سٹڈیز۔ ایلون مسک اور ایپل کی کہانیاں سنانا چھوڑ دیں، اپنے ارد گرد دیکھیں۔ آپ کے شہر کی وہ مشہور بریانی کی دکان جو ایک ٹھیلے سے شروع ہوئی تھی، وہ کروڑ پتی کیسے بنے؟ وہ بڑا شاپنگ مال جو چند سال پہلے کھلا تھا، وہ کیوں ڈوب گیا؟ لاہوری کڑھائی کے اس برانڈ نے دبئی تک شاخیں کیسے کھول لیں؟ ان مقامی کاروباروں کی کامیابی اور ناکامی کی تفصیلی کہانیاں بیان کریں۔ نفسیاتی طور پر انسانوں کو ان کہانیوں میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے جن سے وہ خود کو جوڑ سکیں۔ گوگل کیسے بنا ایک متاثر کن کہانی ہے، لیکن لاہور کا فلاں کالج کیسے ناکام ہوا ایک ذاتی اور متعلق کا کہانی ہے۔ اس میں مقامی تجسس، کاروباری سبق اور انسانی دلچسپی سب کچھ موجود ہے۔ نمبر 2، بزرگوں کے لیے ٹیکنالوجی۔ یہ ایک بہت بڑی نظر انداز شدہ مارکیٹ ہے۔ ایک ایسا چینل جو جدید ٹیکنالوجی کو انتہائی سادہ، دھیمے اور سیدھے انداز میں سمجھاتا ہو۔ موضوعات: واٹس ایپ پر اپنی پرائیویسی کیسے محفوظ کریں، ایزی پیسہ سے بل کیسے جمع کروائیں، اسمارٹ فون پر غلطی سے ڈیلیٹ ہونے والی تصویریں واپس کیسے لائیں، آن لائن فراڈ سے کیسے بچیں۔ ہر گھر میں بزرگ ہیں جو ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہیں یا اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن انگریزی یا تیز رفتار ویڈیوز نہیں سمجھ پاتے۔ ان کے بچے یہ ویڈیوز خود تلاش کر کے اپنے والدین کو دکھائیں گے۔ یہ ایک ایسا مواد ہے جو مددگار ہے، اور مددگار مواد ہمیشہ عزت اور وفادار سبسکرائبر کماتا ہے۔ نمبر 3، ڈارک سائیکالوجی اور باڈی لینگویج۔ انسانی نفسیات کا تاریک پہلو۔ لوگ آپ کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ گیس لائٹنگ کیا ہے؟ زہریلے رشتوں کو کیسے پہچانیں؟ اس کے برعکس لوگوں کی باڈی لینگویج کو کیسے پڑھیں؟ کوئی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے تو کیسے پکڑیں؟ انٹرویو میں پر اعتماد کیسے نظر آئیں؟ انسان فطرتاً طاقت اور کنٹرول چاہتا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ دوسرے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور خود کو دھوکے سے کیسے بچانا ہے۔ یہ موضوعات سسپینس، خود شناسی اور طاقت کا ایک نشہ آور امتزاج ہیں۔ یہ فیس لیس، بغیر چہرہ دکھائے چینل کے لیے بہترین آئیڈیا ہے جہاں صرف آپ کی آواز اور سٹاک فوٹیج ہی کافی ہے۔ نمبر 4، سستی اور دیسی غذائیت۔ فٹنس انڈسٹری مہنگے پروٹین پاؤڈرز، ایووکاڈو اور سالمن مچھلی کے گرد گھومتی ہے۔ یہ آئیڈیا اس کے بالکل برعکس ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دال روٹی کیسے کھائیں، دیسی گھی کے فوائد،
चना चाट बमुकाबला प्रोटीन बार, क्या बेहतर है। 100 रुपये रोज में एक बॉडी बिल्डर की डाइट। 90% आबादी ना तो महंगी डाइट खरीद सकती है और ना ही इसे अपनाना चाहती है। उन्हें वो हल चाहिए जो इनके किचन में, इनकी सकाफत में मौजूद हो। जब आप उन्हें बताएंगे कि वो सेहतमंद रहने के लिए वही खा सकते हैं जो वो हमेशा से खाते आए हैं, तो आप इनका एतमाद जीत लेंगे। नंबर 5, माइक्रो हिस्ट्री अर्बन एक्सप्लोरेशन। बड़ी और मशहूर तारीखी इमारतों, बादशाही मस्जिद, ताजमहल को सब ने कवर कर लिया है। आप इनको छोड़ दें, अपने शहर की गलियों में घूमें और इन पुरानी हवेलियों, मतरूका सिनेमा घरों या बूत बंगला कहलाने वाली इमारतों की तारीख और कहानियां दरियाफ्त करें। इसरार और तजस्सुस वो चीज़ें हैं जिन पर इंसान क्लिक करने पर मजबूर हो जाता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि इनके अपने शहर में कौन से राज दफन हैं। ये मकामी तारीख और सनसनी खेजी का एक बेहतरीन इम्तिजाज है। नंबर 6, आम कामों के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल। हर कोई चैट GPT की बात कर रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए यह अब भी एक खिलौना है। आप इस खिलौने को एक औजार में बदल दें। आम लोगों के हकीकी मसाइल को AI से हल करना सिखाएं। मसलन AI से नौकरी की दरख्वास्त या CV उर्दू में कैसे लिखवाएं। AI से अपनी दुकान के लिए शानदार लोगो मुफ्त में कैसे बनाएं। AI से अपने बच्चों के स्कूल का होमवर्क कैसे करवाएं। यह आइडिया ट्रेंड और अमली मदद को जोड़ता है। आप लोगों को मुस्तकबिल की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी को इनकी अपनी ज़बान में, इनके अपने मसाइल के लिए इस्तेमाल करना सिखा रहे हैं। नंबर 7, किताबों का खुलासा, सिर्फ उर्दू अदब फलसफा। अंग्रेजी सेल्फ हेल्प किताबों के खुलासे हर दूसरा चैनल बना रहा है। इस भीड़ से निकलें। आप सिर्फ उर्दू अदब के शाहकारों पर तवज्जो दें। मुमताज़ मुफ्ती की लब्बैक का असल पैगाम क्या था। अशफाक अहमद के जाविया के 3 गहरे असबाक, बानो कुसिया की राजा गिद्ध का नफ्सियाती तज्जिया। लोग दानश्वर और गहरा नजर आना चाहते हैं, लेकिन इनके पास ये ज़ख़ीम किताबें पढ़ने का वक्त या हिम्मत नहीं है। आप उन्हें 10 मिनट में वो इल्म दे रहे हैं जिससे वो घंटों गुफ्तगू में महफिल लूट सकते हैं। ये इल्म के साथ साथ समाजी हसीयत भी बेचता है। नंबर 8, सस्ते प्रोडक्ट्स का मुआवजा। iPhone 17 या महंगी गाड़ियों के रिव्यूज़ करना छोड़ दें। यह आपकी टारगेट मार्केट नहीं है। इसकी बजाय आम आदमी की चीज़ों का मुआवजा करें। क्या 500 रुपये वाली इस्त्री 2000 वाली से बेहतर है? पतीली, टपाल या लिप्टन कौन सी चाय की पत्ती बेहतरीन है? 2 लोकल साबुनों का साइंसी मुआवजा, ये आवाम का असल मसला है। आपका व्यूवर आईफोन नहीं खरीद रहा, वो ये फैसला कर रहा है कौन सा सस्ता पंखा इसकी बिजली बचाएगा। ये मवाद बेपनाह अमली कदर वैल्यू रखता है और इस पर ब्रांड आपको इंस्पायर करने के लिए भागते आएंगे। नंबर 9, वर्चुअल विलेज टूर्स। ये वीलॉगिंग नहीं है, ये एंटी वीलॉगिंग है। बगैर किसी तेज एडिटिंग, बगैर शोर मचाती मौसीकी और बगैर किसी गुफ्तगू के सिर्फ खामोश मनाजर, गाँव की सुबह, परिंदों की आवाज़ें, खेतों में काम करता किसान, रोटी पकाती खातून, बारिश की आवाज़। इसे एस्मर या स्लो टीवी कहते हैं। इसकी 2 बड़ी मार्केटें हैं। अव्वल, शहरों में रहने वाले लाखों लोग जो ज़हनी सुकून, आराम और मराकबा के लिए वीडियोस देखते हैं। 2, बैरून मुल्क मुकीम करोड़ों पाकिस्तानी और भारतीय जिनके लिए ये खालस नॉस्टैल्जिया है। ये इनके बचपन की यादें हैं और वो उन्हें बार बार देखेंगे। नंबर 10, मुनफरद पेशों के इंटरव्यूज। आम अमीर सेलिब्रिटीज़ या सियासतदान के इंटरव्यू बहुत हो चुके। इन लोगों से बात करें जिन्हें मुआशरा नज़रअंदाज करता है, लेकिन जिनके पास हकीकी कहानियां हैं। एक कब्र खोदने वाले की ज़िंदगी का एक दिन, एक गटर साफ करने वाले के खौफ, एक सांप पकड़ने वाले के तजर्बात या एक कबाड़ जमा करने वाले के ख्वाब। ये ह्यूमन इंटरेस्ट कहानियां हैं। ये जज्बात को छूती हैं और लोगों को एक नया जाविया नज़र देती हैं। ये वो मवाद है जो लोगों को अपनी ज़िंदगी पर शुक्रगुजार होने पर मजबूर करता है और इसके वायरल होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 11, घरेलू मरम्मत और जुगाड़।
एक ऐसा चैनल जो लोगों को खुद इन्हिसार बनना सिखाए, इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को बुलाए बगैर घर की छोटी मोटी चीजें ठीक करना, पानी की मोटर की आवाज ठीक करें, इस्त्री का प्लग कैसे बदलें, वॉशिंग मशीन का पाइप कैसे लगाएं, दीवार में कील ठोकने का सही तरीका। महंगाई के इस दौर में हर कोई मरम्मत के इन छोटे कामों पर 500 या 1000 रुपए बचाना चाहता है। ये एक एवरग्रीन मौजू है, जिसका मतलब है कि आपकी आज बनाई गई वीडियो 10 साल बाद भी देखी जाएगी और कमाती रहेगी। नंबर 12, ज़री टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़री मुल्क है, लेकिन यूट्यूब पर किसानों के लिए मियारी, जदीद और साइंसी मवाद ना होने के बराबर है। रवायती तरीकों की बजाय जदीद तरीके सिखाना, कम पानी में ज़्यादा फसल कैसे उगाएं, ड्रोन टेक्नोलॉजी से स्प्रे कैसे करें, नई खादों का इस्तेमाल, मौसमियाती तब्दीलियों से फसल को कैसे बचाएं। ये एक बिजनेस टू बिजनेस B2B चैनल है। आपका व्यूअर एक आम सार्फ नहीं बल्कि एक किसान है जिसकी पूरी आमदनी आपके मशवरे पर मुनस्सर है। ये एक इंतहाई संजीदा और वफादार ऑडियंस है जिसे अगर आपने फ़ायदा पहुंचा दिया तो वो आप पर अंधा एतमाद करेगी। नंबर 13, उर्दू दस्तावेजी कहानियाँ। मगरब में ट्रू क्राइम यूट्यूब की सबसे बड़ी और मुनाफा बख्श कैटेगरीज में से एक है। इस मॉडल को उर्दू में लाएं। पाकिस्तान की तारीख के पुरसरार हल तलब या सनसनीखेज जराइम और वाक़यात पर गहरी तहकीक करके दस्तावेजी अंदाज डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में वीडियो बनाएं। इंसान फितरतन सस्पेंस, जराइम और पहेलियों की तरफ खींचता है। ये किसी भी थ्रिलर फिल्म से ज़्यादा नशावर होता है क्योंकि ये सच होता है। इसके लिए गहरी तहकीक और अच्छी स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत है, लेकिन इसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं है। नंबर 14, नाकामियों का तजिया। हमारा मीडिया सिर्फ कामयाबी का जश्न मनाता है, कोई ये नहीं बताता कि नाकामी क्यों होती है। ये चैनल इसके बरक्स करेगा। इन लोगों की कहानियां बताएं जो फेल हुए, या इन बड़े प्रोजेक्ट का तजिया करें जो नाकाम हुए। वो पाकिस्तानी कार कंपनी क्यों फ्लॉप हुई, ये मशहूर रेस्टोरेंट क्यों बंद हो गया। ये मवाद हकीकत पसंदाना है और लोगों को वो सिखाता है जो कामयाबी की कहानियां नहीं सिखा सकती, यानी क्या नहीं करना। ये लोगों को हकीकी नुकसान से बचाता है, इसलिए इसकी कदर बहुत ज्यादा है। नंबर 15, बच्चों के लिए मालियाती तालीम। एक ऐसा चैनल शायद एनिमेशन या कार्टून के जरिए जो खास तौर पर बच्चों और नौ उम्रों को पैसे की अहमियत सिखाए। क्लिक मनी बॉक्स से आगे बढ़कर सेविंग क्या होती है, मुनाफा क्या होता है, पहला छोटा कारोबार जैसे लीमू पानी का स्टॉल कैसे शुरू करें, पैसे की कदर कैसे जानें। इस चैनल का असल हदफ बच्चे नहीं बल्कि इनके वालिदैन हैं। आज के हर बाशऊर वालिदैन चाहते हैं कि इनके बच्चे पैसे की कदर जानें और माली तौर पर खुद मुख्तार बने, लेकिन उर्दू में बच्चों के लिए ऐसा मवाद सिफर के बराबर है। आप इस खला को पुर कर सकते हैं। ये 15 आइडियाज सिर्फ शुरुआत हैं। असल कामयाबी का राज बेड़ चाल से बचने में है। इन मौज़ूआत में से वो एक चुनें जिसके बारे में आपको हकीकी शौक या इल्म हो, फिर इसे आम तरीके से पेश ना करें। इसे ऐसे मेयार, क्वालिटी, ऐसी गहरी तहकीक और ऐसे मुनफरद अंदाज से पेश करें कि देखने वाला ये कहने पर मजबूर हो जाए ये वो चैनल है जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। यूट्यूब का मैदान भरा हुआ नहीं है, ये सिर्फ गलत जगहों से भरा हुआ है। सही जगह पर पहला कदम उठाएं और ये पूरा मैदान आपका है। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।